Hello friends, I am Aditya Kedari and today's topic is theories of intellectual property. तो चलिए एक एक थियरी करके देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन से थियरीज हैं. फर्स्ट इज थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स. द मेन justification behind this theory is that everyone has a right to consider his or her ideas as natural property, right, by the reason that the creation originates from the efforts, originality and inventiveness of the creator. तो ये जो थियरी ये कहती है बेसिकली कि दैट एवरी पर्सन हु हैज एनी इनोवेटिव आइडिया, all those ideas will lead to some kind of expression. It will lead to some kind of invention, products, processes, trademark, designs, patents, etc. So, along with this idea and all these creations, the person who has this idea, okay, it can be you, it can be me, I have the right over that idea. No other person has the right over that idea. Okay, if something innovative I have in my head. So normally, as any natural right of, right to life, right to freedom of speech and expression, right to religion, anything, right to dignity, etc. All these rights are natural. We can't say that okay, right to life is not a natural right. It's natural. It's available in the nature. There is no debate on that. Similarly, I have the right to idea. Okay, as this theory mentions in its context. Basically, it is based on a famous philosopher John Locke's. It's his idea that there is no difference between intellectual property and the traditional tangible property. Like any flat, you have intellectual property like patent because we enjoy the rights similar to patents because once we have the ownership of the flat, we have the possession of the flat. We can put it on rent. We can allow or disallow any person to use our flat or not. Similarly, patents. Once we get the patent, whether another person can use it, can is imitate it, reproduce it, it's my without my authority, he cannot do with regards to my patents or my copyrights or my trademark. So here, Locke's and this theory mentions that any other right. So intellectual property is no different than the normal traditional definition of property. It's like any other normal property. But as per this theory that as ideas are there naturally in a particular person, inventions also are occurring naturally to a particular person. All this land, air, water, we have a right to air, we have a right to land, we have a right to water. Similarly, we have a right to ideas naturally imbibed in our environment, in us. Okay, but there is a huge criticism of this theory. See, first of all, intellectual property right are protected for a specific time. It's time bound. It has some temporal limitation. Once you buy a flat, you are the owner throughout your life, and once you die, your legal heirs or your nominees will get the flat. Correct? But patent is only for 20 years. After 20 years, you cannot renew patent. Copyright is for life plus 50 years as per the Berne Convention and the TRIPS agreement. Trademark is for 15 years. Design is for 15 years. Trademark is for 10 years. Okay, so it is time specific. After that, you can't. And you have to keep renewing. आपको renew करना पड़ता रहता है. आपको फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ती है हमेशा. फ्लैट एक बार खरीद ले उसको क्या रिन्यूअल फी भरनी है आपको. कोई रिन्यू करने की जरूरत नहीं. सो इट इज टेम्पोरल लिमिटेशन. पेटेंट को 20 साल के बाद फिर से उसको रिन्यू नहीं कर सकते. खत्म. उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है. और लॉकियन जो प्रोविजंस है लॉकियन फिलोसफी के वो भी ये करता है कि कोई इनोवेटर किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ओन नहीं कर सकता. सिर्फ आइडिया. नेचुरल थियरी क्या बोलती है, नेचुरल राइट्स की थियरी क्या बोलती है कि आप आइडिया को ये कर सकते हो. लेकिन अगर आप देखेंगे आज के डेट में ट्रिप्स एग्रीमेंट, बर्न कन्वेंशन, आप किसी आइडिया पे ओनरशिप नहीं कर सकते. आपने उस आइडिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्म. मुझे आइडिया है, मुझे ऐसा पिक्चर बनाना है, लेकिन उसी आइडिया पे कोई और इंडिविजुअल बना लेगा पिक्चर आपसे पहले, और आपने तो कुछ किया ही नहीं. अब मुझे किताब लिखनी है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे को एक फिल्म बनानी है, मेरे पास आइडिया है. लोगों के पास 100 आइडिया होते हैं, बट उन 100 में से मटेरियलाइज कितने होते हैं, एक्चुअल एक्सप्रेशन में कितने आते हैं, प्रोडक्ट या प्रोसेस में कब तक कन्वर्ट होते हैं. कोई लोग होते हैं बस बड़ी बड़ी बातें करते कुछ नहीं है, और लोग कोई वो आइडिया सुन के इंप्लीमेंट भी करके उनको पेटेंट या कॉपीराइट भी मिल जाता है. तो आइडिया पे किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है. अगली थियरी है यूटिलिटेरियन थियरी. यूटिलिटेरियन थियरी के हिसाब से सोशल वेलफेयर, मतलब ये दिस इज इंस्पायर्ड बाय बेंथम और मिल, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे. उनका ये कहना था कि देयर इज दिस पॉलिसी दैट ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई होनी चाहिए. इट इज फॉर सोशल वेलफेयर. तो अगर किसी चीज का पेटेंट मिलता है तो हम उस पेटेंटी, मतलब जो पर्सन, जो इन्वेंटर है, उसको हम रॉयल्टी पे करते हैं. लेकिन उन रॉयल्टी के रिटर्न में जितने लोगों को वो इन्वेंशन इस्तेमाल करने को मिलता है वो
अनपैरेलल्ड है, बहुत लोगों को फायदा है इन्वेंशन की वजह से। इसके लिए आज के डेट में टेलीविजन, कार, एरोप्लेन ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। लेकिन जस्ट इमेजिन द फर्स्ट टाइम व्हेन टेलीविजन केम, इन द 80s 90s, द होल पूरे अपार्टमेंट में एक किसी के पास टेलीविजन हुआ करता था। पूरे सोसाइटी में, पूरे मोहल्ले में एक कार हुआ करती थी। तो बच्चे कार के पीछे भागते थे, अरे कार कार, बच्चे आगे नो। आज भी रूरल एरियाज में लोग देखते कोई पॉश कार आ गई तो सब बच्चे। लेकिन अभी धीरे धीरे अगर आप देखोगे सिटीज में, हर के पास कार है, हर के पास टेलीविजन है, हर के पास डिश टीवी है, हर के पास रेफ्रिजरेटर है। एक जमाने में ये चीज लग्जरियस हुआ करती थी, इट वॉज नॉट अफोर्डेबल टू एवरीबडी। तो इसकी वजह से आज वो नॉर्मल हो गई। तो ये यूटिलिटी थ्योरी कहती है कि भैया जब पहली बार जो बना उसको हमने 20 साल तक उसको रॉयल्टी पे करी, लेकिन उसके बाद दुनिया का भला हो गया। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए। कि देखिए, प्राइमरी एसेंस ऑफ दिस थियरी इज दैट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एंड कल्चरल गुड्स कैन क्रिएट अ बेटर एंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। जैसे मैंने बताया, अभी कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वी हैव वर्चुअल करेंसी, वी हैव रोबोट्स, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव साइबर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतना एडवांसमेंट हो गया है जिसकी वजह से ओवरऑल समाज का, इंडस्ट्रीज का, इकोनॉमी का, सारे स्पीयर्स में डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। To feel the need of promoting the inventions and creations, there should be a nominal certification that the outcome will be superior as compared to the expenses incurred for this work. कि हम जितना उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं उससे कई ज्यादा हमारा समाज का फायदा होना चाहिए, वरना ये थियरी का क्रिटिसिज्म हो जाता है। Likewise, as the name suggests, the incentive theory validates the duty of society to respect the innovator. देखिए, जो भी इन्वेंट करता है ना उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट, और उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर उसको पता है कि मैं कुछ भी इन्वेंट करूंगा तो समाज उसका कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा, उसको कॉपी करके लोग सभी सभी पैसा कमाने वाले, किसी भी तरीके का मुझे फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप इनोवेटर को प्रॉफिट नहीं देते, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देते, तो ऑब्वियसली वो इनोवेट नहीं करेगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। वो डिस्करेज हो गया। 3 इडियट्स के आमिर खान के भी 400 पेटेंट थे, मतलब उसका 20 साल तक का उसका अधिकार था उस पर। उसने ऐसे समाज कार्य के लिए बस बांट नहीं दिए। ओके, क्रिटिसिज्म जैसे मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज कल कोरोना का कोई वैक्सीन आ जाता, वो इतना महंगा है कि 5,000 फॉर दिस वैक्सीन, कितने लोग ले पाएंगे? मिडिल क्लास के लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास जॉब है तो सैलरी नहीं है, आधी सैलरी है, लोगों की सेविंग्स खत्म हो चुकी है, फिर से लॉकडाउन चल रहा है। और अगर कल वैक्सीन आती जिसकी वजह से सबकी तबियत ठीक हो जाएगी, जिस कोरोना गायब हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, लेकिन मेडिसिन आ गई जो 5,000 की है, हर कोई नहीं 5,000 रुपये अफोर्ड कर पाएगा। तो ये हो सकता है, ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म कि जो गेन कर रहा है समाज, उससे कई ज्यादा हम पेटेंटी को पैसा दे रहे हैं। नेक्स्ट थियरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। ठीक है, बेसिकली इसका ये मानना है कि समाज का एक, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इन्वेंटर एंड द सोसाइटी। जो इनोवेट करता है, इनोवेटर, और जो समाज, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि इनोवेटर बोलता है मैं आपको इन्वेंशन देता हूं, आप मुझे रिकग्निशन दो, पैसा दो, और मेरा नाम सेफ रखो, मेरा नाम अच्छा रखो, कोई मेरा कॉपी ना करे, अगर करता है तो मुझे उसका कंपनसेशन दो। तो इधर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि भैया मैं आपको मेरा इन्वेंशन देता हूँ, मेरा नॉलेज देता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज देता हूँ, जिसकी आगे जाके रिसर्च कर सके और बड़ा आप इनोवेशन कर सकते हो। लेकिन इन रिटर्न मुझे पैसा चाहिए, इन रिटर्न मुझे रिकग्निशन चाहिए, कोई और इसकी कॉपी ना करे, इस चीज की मुझे गारंटी चाहिए। तो देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कुछ ले रहे हो, आप भी मुझे कुछ दो। ठीक है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप में, देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सोसाइटी एंड द इनोवेटर्स। सोसाइटी रिकग्नाइजेस दैट इनोवेशन इज सोशली बेनिफिशियल, जैसे मैंने बोला समाज के लिए बहुत अच्छा है। ओके, इसलिए इनोवेट करना जरूरी है, और इन रिटर्न उसको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़े तो चलेगा। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न फॉर दिस कॉस्ट। जो पैसा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो पैसा हम दे रहे हैं उस इनोवेटर को, वो हमें अपना नॉलेज दे रहा है, अपना इनोवेशन दे रहा है, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो ही जाएगा 20 साल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट थियरी है इंसेंटिव टू डिस्क्लोज थियरी। अब ये थियरी स्पेसिफिकली पेटेंट लॉ से रिलेटेड है कि इसका क्लियर मानना है कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बताया गया है कि सिमिलरली जो इंसेंटिव टू डिस्क्लोज थ्योरी जो पेटेंट स्पेसिफिक है, सिर्फ पेटेंट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टाइप जो है उसको स्पेसिफिक है कि इंसेंटिव टू डिस्क्लोज, क्यों मैं अपना इनोवेशन पेटेंट करवाऊं? मैं तो अपना सीक्रेट रखूंगा, मैं सीक्रेट भी रख सकता हूँ मेरा इन्वेंशन। जैसे कि अगर मिस्टर इंडिया मूवी अगर आपने देखी होगी अनिल कपूर की, उसके अंदर वो एक वॉच पहनता है, वो वॉच का बटन दबाने के बाद वो गायब हो जाता है, वो मिस्टर इंडिया बन जाता है, इनविजिबल बन जाता है। उसका भी पेटेंट कर सकते थे, उस मूवी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो सीक्रेट रखता है क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये सीक्रेट किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए तो उसको मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। वैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं कर सकते एज पर लॉ,
क्योंकि वो किसी दुश्मन को, क्योंकि एक बार आपको पेटेंट मिलता है तो इन रिटर्न मुझे सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आई हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट माई इन्वेंशन, तो ताकि दूसरा इंडिविजुअल उसको कॉपी कर लेगा। क्योंकि टेररिस्ट लोग तो परमिशन लेंगे नहीं ना न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। इसे उसी तरीके से मिस्टर इंडिया में भी आप देखोगे तो उसने उसका पेटेंट नहीं किया तो ये इंसेंटिव है कि अरे हाँ, अगर मैं करूंगा तो मेरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा तो मुझे पैसा मिलेगा, वरना वो सीक्रेट भी रख सकता है। लेकिन अगर आप जब भी आपका कोई इनोवेशन सीक्रेट रख सकते हो और किसी को पता चल गया, गलती से लीक हो गई इन्फॉर्मेशन, तो वही इंडिविजुअल वही इन्वेंशन बना के पेटेंट करवा सकता है और आपको ना पैसा मिलेगा ना रिकग्निशन। तो ये इसका ड्रॉबैक है। सो दिस थियरी इज स्पेसिफिक टू पेटेंट लॉ, ये याद रखिएगा। लॉक्स थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, जो थोड़ा बहुत हमने थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स में देखा था, ये थियरी थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखें लॉक्स थियरी क्या बताती है। इसको द सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1690 भी कहा जाता है। इट इज अ थियरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसा भी कहा जाता है। इट इज रूटेड इन लॉक्स आइडेंटिटी कि भैया जो भी दुनिया में जो लैंड है, वाटर है, एनी मटेरियल रिसोर्सेज है, मिनरल्स हैं, जो कि हमें कोल, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये भी, ये सारे के ऊपर इंसान का अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं। ठीक है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं ना, उसी तरीके। सो जैसे मैंने बताया, लॉक ने कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और नॉर्मल प्रॉपर्टी में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मैंने बताया आर सेम एज प्रॉपर्टी राइट्स। जो पर्सनल गुड्स जो आप लेते हैं, मतलब, और किताबों में ज्यादा उसने कुछ फर्क नहीं किया। ओके, सो इसका एक अच्छा था लॉक का कि उसने प्रिवेंट किया। ही सेड दैट, जैसे उस थियरी में भी हमने देखा नेचुरल राइट्स में, कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर कोई भी ओनरशिप, कोई भी पेटेंट, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं मिल सकता। और उसी तरीके से वैसे के वैसे हमने हमारा जो इंडियन कॉपीराइट लॉ है, या जो बर्न कन्वेंशन है, या जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसमें भी यही कहा गया है कि यू कैन नॉट हैव अ कॉपीराइट ओवर एन आइडिया जब तक वो आइडिया किसी मूवी में कन्वर्ट नहीं होती, गाने में कन्वर्ट नहीं होती, किसी ड्रामा में कन्वर्ट नहीं होती, किसी किताब में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक उसको किसी भी टाइप का कॉपीराइट नहीं मिलेगा। आइडिया डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉपीराइट और एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो लॉक का थियरी थोड़ा बहुत आज के डेट में रिलेवेंट है। थियरी ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब क्या है? देखिए, समाज में अलग अलग कल्चर होते हैं। इंडियन कल्चर इज डिफरेंट देन जापानीज कल्चर, चाइनीज कल्चर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, ये सब अलग अलग है। तो हर एक के अलग अलग इनोवेशंस रहेंगे, हर एक के अलग अलग थिंकिंग होती है, तो हर एक इंसान के आइडियाज अलग होते हैं, तो कुछ अलग इनोवेट कर सकता है। लेकिन देखिए कि कोई ऐसी चीज है जो इमोरल है, ओके, इफ देयर इज समथिंग इमोरल, गलत चीज, ऑब्सीन चीज है, लेकिन वो इन्वेंशन है, कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, क्या उसको पेटेंट दिया जा सकता है? इंडिया में नहीं दिया सकता। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि अगर कोई चीज है जो ऑब्सीन है, जो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, जो अगेंस्ट मॉरलिटी है, उसको आप पेटेंट नहीं दे सकते। लेकिन देखो, मॉरलिटी सब्जेक्ट, अमेरिका में जो मॉरल है वो इंडिया में इमोरल है। जैसे वहां की जो पॉर्न इंडस्ट्री है, ओके, वो लीगल है, इंडिया में नहीं है। सो अगर आपको किसी भी चीज को पेटेंट कॉपीराइट देना है तो कल्चर में आप कल्चर के जो लेंस है या कल्चर थ्रू मत देखिए। लुक इट एज एन इन्वेंशन, लुक एट इट इज ऑब्जेक्टिवली। उसमें अपने इमोशंस, फीलिंग्स, अपना कल्चर, अपने थॉट प्रोसेस मत डालिए कि इनोवेशन है, उसको पेटेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको प्रोटेक्ट। तो कल्चरल हिसाब से मत सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर समाज में क्या सही है क्या गलत है अलग है। ओके, अमेरिका में पूरी फैमिली बैठ के शराब पीती है, इंडिया में अभी तक उतना ओपन, हाँ हुआ है कहीं कहीं, लेकिन इतना भी ओपननेस नहीं है आज के डेट में इंडिया में। ठीक है, कि जैसे वहां के मूवीज में न्यूड सीन्स दिए जाते हैं, यहाँ पे वो सीन्स कट कर देंगे। कल्चरल रिलेटिविज्म, तो ये देख के आपको उस चीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देना है। तो उसी में का एक पार्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज, जहाँ पे हर एक का ट्रेडिशन अलग। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब क्या? जो जनरेशन टू जनरेशन कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी डेवलप किए जा रही है, कि भाई किसी झाड़ को एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, ये मेडिसिन कैसे बनाते हैं, झाड़ में मेडिसिन प्रॉपर्टीज है, या हैंडीक्राफ्ट, या कोई भी प्रोडक्ट को सीलना है किसी अलग टाइप से, जो उस कम्युनिटी को ही आता है, उसको उस कल्चरली वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल नॉलेज उस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई कंपनी, कोई भी इंसान उस नॉलेज का इस्तेमाल करके खुद तो अमीर हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को जो जिन्होंने वो एक्चुअली फाइंड आउट किया है वो नॉलेज, उनको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, उनका भी फायदा होना चाहिए। ओके, सो हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम है, उन्होंने इस तरीके से अडेप्ट किया इंटरनेशनली और नेशनली, कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इन लोगों का, जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है, उनको नुकसान ना हो, उल्टा अगर उनके नॉलेज का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उनको भी पैसा मिले, उनका भी फायदा हो, उनका भी डेवलपमेंट हो, और उनको भी रिकग्निशन मिलेगी। ये ट्रेडिशनल नॉलेज किसी कॉर्पोरेशन का नहीं है, उन लोगों का है। ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट्स होते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता कि इस प्लांट में कोई मेडिसिनल पर्पज है। कोई स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, क्राफ्ट्स होते हैं, जिनकी कोई सिंबॉलिक वैल्यू होती है, कोई रिलीजियस मीनिंग होता है, जो कि
उस समाज के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन क्या पता अंडमान निकोबार में ना हो। अंडमान निकोबार इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ के लोग थोड़े अलग है, उनका कल्चर अलग है। जो चीज़ नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट ना हो। इसलिए उस हमारे देश में तो बहुत कल्चरल डिफरेंसेस आप महाराष्ट्र में ही देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पूना मुंबई का कल्चर बहुत अलग है फ्रॉम कोंकण एरिया, विच इज़ वेरी डिफरेंट देन मराठवाड़ा, विच इज़ वेरी डिफरेंट देन खानदेश, देन नागपुर। बहुत लोगों का थिंकिंग वेरिएशन, मराठी बोलने की जो टोन होती है वो भी बदल जाती है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करके पता चलता है कि हाँ इस प्लांट में ये मेडिसिनल वैल्यू है, हाँ इस चीज़ में कुछ तो जिससे इंसान का फायदा होगा, जिससे कुछ इनोवेट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, और बहुत बार जनरेशन, बहुत वक्त भी लग जाता है, क्योंकि बहुत बार ये लोग जो होते हैं ये वे रूरल एरियाज में रहते होते हैं, या जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो इनके पास ये नॉलेज होता है। ठीक है, इसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल, साइंटिफिक, टेक्निकल, इकोलॉजिकल, मेडिकल जो फील्ड है, बायोडाइवर्सिटी, उसमें ये ट्रेडिशनल नॉलेज मिलता है। तो अगर मैं एग्जांपल्स दूं, प्लानियो करके चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है थाई ट्रेडिशनल हीलर्स टू ट्रीट अल्सर्स। अल्सर्स को अल्सर जो होते हैं, मुंह में अल्सर आते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए प्लानियो नाम की चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आया हुसैकनिया वाइन करके होती है वेस्टर्न अमेजोनियन ट्राइब की, जिससे अगेन मेडिसिनल वैल्यू है। यूज ऑफ हुडिया कैक्टस बाय सैंड पीपल टू स्टेव ऑफ हंगर वाइल्ड आउट हंटिंग, कि भैया भूख ना लगे इसके लिए हुडिया करके कैक्टस खाया जाता है। सस्टेनेबल इरिगेशन थ्रू वाटर सिस्टम सच एज अफलाज इन ओमान एंड यमन एंड कनात इन ईरान। तो ये इरिगेशन का एक प्रोसेस है जिससे सस्टेन, क्योंकि इन ओमान यमन इसमें डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम है। अगर एग्रीकल्चर करना है तो वी हैव टू यूज सम सस्टेनेबल इरिगेशन मेथड। ये मेथड को भी, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और करते भी हैं इंटरनेशनली और लोकली भी। सो दोज आर ऑल द थियरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगेन अ स्मॉल अनाउंसमेंट, सोशियोलॉजी की बैच 7 जून से स्टार्ट होने वाली है। यू कैन ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। एडमिशन्स ओपन है। ऑनलाइन बैच होने वाली, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ कोरोना आई हैव टेकन अ डिसीजन दैट वी शुड स्टार्ट ऑनलाइन, बिकॉज ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। दोज हु वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर यूपीएससी एमपीएससी, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब चैनल का नाम, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरा फेसबुक पेज सब दिया है। आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर हैविंग एनी काइंड ऑफ यूपीएससी एमपीएससी गाइडेंस। इस कोर्स में आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस लूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, एंड देयर विल बी होल डिटेल एनालिसिस, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इन यूपीएससी एमपीएससी फील्ड फॉर द लास्ट 9 years। तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी कपल ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो क्रैक्ड यूपीएससी विद दिस सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। दिस वॉज अ स्मॉल अनाउंसमेंट विच आई वॉन्टेड टू मेक। थैंक यू पीपल। टुडेज टॉपिक वॉज थियरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने सारे थियरीज पढ़ लिए हैं। That was today's video, guys. Thank you. Till then, I am Aditya Kidari, signing out.